Assalamu alaikum students. Welcome in the class of environmental chemistry, and as you people know that we are doing discussion about environmental analysis, or more correctly I am lecturing about environmental analysis. ठीक है, अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि what are various steps of environmental analysis. इसमें कुछ आपको repetitive लगेगा, but this is important from the paper point of view. और जो repetitive है एक्चुअली उसको ज़रा डिटेल से बयान किया गया है. So environmental analysis में we know that analysis is performed by laboratories. Laboratories are under the impact of government. और इसके अलावा लेबॉर्ट्रीज जो है उनका कांटेक्ट होता है कमर्शियल कंपनीज के साथ भी. कंपनीज के रिक्वायरमेंट के मुताबिक एनालिसिस परफॉर्म किए जाते हैं, और द रिक्वायरमेंट बाय इंडस्ट्री और requirement of the research institutes as well as the universities. So in environmental analysis, the first thing is sampling, and then we will treat the sample according to the requirement. Then after preparing sample, we analyze the sample, and after that we interpret or calculate the results. Portion of physical environment which is withdrawn from chemical analysis. ठीक है, this is called as sample. sample क्या होता है? This is the portion of physical environment जो कि environment से withdraw किया जाता है chemical analysis के लिए. अच्छा, अब sample जो है environment के अंदर solid sample भी हो सकता है, for example the soil sample, या फिर liquid sample, that is we want to determine the, for example, pollutant concentration of cadmium in the water sample or mercury in the water sample, like river water. Likewise, this sample may be of gaseous, that is the analysis of air. अब analyte क्या होता है? The substance being analyzed in the substance in the sample, this is analyte. जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी कि हम कैडमियम की डिटेक्शन करना चाहते हैं वाटर सैंपल के अंदर, so cadmium is the analyte here. अच्छा जी, अब ये बैच सैम्पलिंग हमने पहले भी पढ़ा है, थोड़ा सा इसको हम और हाईलाइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. Batch samples involves taking a sample from the environment, performing an analysis either on site or later on in the laboratory. ठीक है, अब बैच सैम्पलिंग में क्या होता है, या ग्रैब सैम्पलिंग, हम एनवायरनमेंट का सैंपल लेते हैं और उसके ऊपर हम एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं राइट अवे एट द साइट ऑफ सैंपल कलेक्शन, या फिर हम अगर फॉर एग्जांपल हमारा सैंपल स्टेबल है, हमें ऑलरेडी पता है, हम इसको लेबोरेटरी में जाके मेजर कर सकते हैं. इट इज़ द ईजीएस्ट and most common method of obtaining a sample, and it is widely used in environmental service. अब इसकी एग्जांपल क्या है? This is important to understand. For example, batch sampling of a wastewater effluent for pH, right? A volume example given 100 ml of the effluent is collected and then analyzed for pH. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि बैच सैम्पलिंग में हमने पीएच कलेक्ट करनी है, डिटरमिन करनी है एफ्लुएंट की, तो हम इसमें 100 ml ऑफ वाटर जस्ट वी विल कलेक्ट फ्रॉम द वाटर बॉडी और उसको एनालाइज कर लेंगे पीएच के लिए. अच्छा, अब इसमें क्या होता है, सैंपल्स आर कलेक्टेड एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस. यानी ग्रैब सैम्पलिंग में अगर सेम प्लेस है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे कि डिफरेंट टाइम्स के इंटरवल पे हम इसका सैंपल कलेक्ट कर लेंगे. सॉरी, मतलब स्पेसिफिक टाइम पे उस प्लेस पे हम कलेक्ट कर लेंगे, जबकि इसी तरह प्लेस जो है उस प्लेस का भी हम सैंपल ले सकते हैं. Now the second one is continuous sampling. A continuous sampling as the name indicate, इसमें हम एफ्लुएंट की फॉर एग्जांपल अगर हमने पीएच डिटरमिन करनी है तो हम उसको कॉन्टिन्यूसली हम क्या करेंगे कि जो पीएच मीटर है आप उसको एफ्लुएंट के सैंपल के अंदर डाल देंगे और उसकी पीएच आप वो रिकॉर्ड करते जाएंगे. सो दिस इज कंटिन्यूअस सैम्पलिंग. Involves continuously monitoring the environmental parameter of interest. It is generally combined with an instrumental method of analysis. तो जैसा कि मैंने कहा फॉर एग्जांपल हमने पीएच जो है वो मेजर करनी थी, तो इंस्ट्रूमेंटल जो मेथड है एनालिसिस का वो क्या है, पीएच मीटर.
इसको कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग भी बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अच्छा जी, continuous sampling of a wastewater effluent for pH can be done by placing a pH electrode directly to the effluent stream and recording the pH on a chart recorder or a data logger। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। So a continuous record of effluent pH is obtained। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि आपको pH मीटर पे नज़र रखनी होगी, और जैसे ही वो कोई डिफरेंट पीएच देगा डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन, फॉर एग्जांपल व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द सैंपल, तो जैसे ही पीएच मीटर डिफरेंट रीडिंग देगा तो हम टाइम के साथ वो रीडिंग उसकी रिकॉर्ड कर लेंगे। सो दिस इज कंटिन्यूअस सैंपलिंग। देन वी हैव कंपोजिट सैंपलिंग। It is prepared by mixing several batch samples usually collected at the same place but at different times. So this is composite sampling। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम इसमें सेवरल बैच सैंपल्स जो हैं उनको मिक्स कर लेंगे, राइट, विच आर कलेक्टेड एट द सेम प्लेस बट एट डिफरेंट टाइम्स। यानी हम क्या, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रीम है, राइट, और उसमें से हम वाटर सैंपल फॉर एग्जांपल 100 ml कलेक्ट कर रहे हैं आफ्टर एवरी 2 आवर्स। फॉर एग्जांपल पहला 100 ml हमने कलेक्ट किया at 10 AM and the second 100 ml we have collected at 12 right PM कहना चाहिए खैर आप, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम कलेक्ट करें एट 4 PM एंड देन द नेक्स्ट एट 6 PM। ठीक है, तो उसका कंपोजिट सैंपल फिर हम कैसे बनाएंगे, मेरा ख्याल हमने अभी तक 4 सैंपल्स कलेक्ट किए, तो वो चारों 100 ml को हम मिक्स करके 400 ml बना देंगे। सो दिस विल बी कंपोजिट सैंपल, राइट। और दूसरा कंपोजिट सैंपल किस तरह से हो सकता है कि ठीक 10 बजे हम 4 सैंपल्स 4 डिफरेंट स्ट्रीम्स से कलेक्ट कर लें और उनको मिक्स कर दें। सो दिस विल बी आल्सो द कंपोजिट सैंपल। This is used to evaluate the average concentration in a medium in which the concentration may vary with time and place। अब हमने कौन सा मेथड यूज करना है कंपोजिट सैम्पलिंग बनाने के लिए, यहाँ ये वाला एट डिफरेंट टाइम्स या डिफरेंट प्लेसेस। सो दिस विल डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन वेरी करती है टाइम के साथ या प्लेस के साथ। सो दिस वी विल डिसाइड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। Batch samples of wastewater are collected every 2 hours over a 24-hour period and pooled into one container, as I have already said। तो ये फिर 12 सैंपल्स इस तरह से बनेंगे और उनको फिर हम वन कंटेनर में डाल देंगे, इकट्ठा कर देंगे। The concentration in the mixture is supposed to reflect a 24-hour average। और this is very important। ठीक है, पिछली दफा भी हमने ये कंपोजिट ग्रैब सैम्पलिंग पिछले एक लेक्चर में हमने स्टडी किया था, बट नाउ दिस इज आई थिंक वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। तो अब ये जो कॉन्टिन्यूस कंपोजिट सैम्पलिंग होगी, इसमें जो मेजरमेंट है वो रिफ्लेक्ट करेगी चेंज इन 24 आवर विच हैज बीन टेकन, बट दिस विल बी एवरेज चेंज। ये एवरेज चेंज होगी क्योंकि फॉर एग्जांपल इस सैंपल के अंदर हमने 12 measurements of 100 ml we have added, so this will be an average change। Thank you very much for watching this lecture, and we will meet with another lecture in the next video। Please subscribe, like and share। Thank you very much। Allah Hafiz।